بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ 4 ایسی چیزیں جو بڑھاپا روکتی ہیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹ اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک مت کھائیں، اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح 25 منٹ پیدل چل لینے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ ایک دانہ انجیر کا 7 دن تک روزانہ کھا لینے سے بدن میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغی کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی شے کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اور پرندوں کی آوازیں آتی ہوں، وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ اگر چکر آنے لگیں تو 1 کپ پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کھا لو۔ نہاتے وقت پانی میں لیموں نچوڑ کر نہانے سے جسم پر کبھی خارش بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد سو جانے سے آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں ہی پھینک دینے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں صفائی نہ رکھی جاتی ہو، وہاں رزق کی تنگی ہی رہتی ہے۔ ناظرین، دہی میں کھجور ڈال کر کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کر دیتی ہے۔ 5 ہفتوں تک دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لیں۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کریں گے۔ ناظرین، 1 تولہ ساگو دانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے یہ ٹوٹکا میرا آزمودہ ہے۔ اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پیاز کو گھوٹ کر پاؤں کے تلووں پر لیپ کریں۔ اس سے ہر قسم کے سر درد کو آرام ہو جاتا ہے۔ معمولی سا ٹوٹکا ہے مگر بے حد مفید ہے۔ پیاز 1 چھٹانگ کو باریک کاٹ لیں اور آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر خوب اچھی طرح جوش دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر چھان کر پی لیں۔ پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کا بخار ہو، سبز الائچی چند دانے 1 کپ پانی میں ابالیں۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو اس میں 4 چمچ کھانے کے خالص عرق گلاب مکس کریں۔ پھر مریض کو یہ پانی پلائیں۔ اس سے مریض کو بے حد پسینہ آتا ہے، جس سے بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہوتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 1 خربوزے کا چھلکا نصف کلو پانی میں ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو میٹھا ملا کر گردہ کے مریض کو پلا دیں۔ ہر گھنٹے کے بعد دیں، پتھری خارج ہو جائے گی۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ پینے کے بعد مریض کلی نہ کرے، ویسے ہی سو جائے۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، سینے کی بلغم ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتی ہیں، جس سے دمہ ہو جاتا ہے یا تھوڑی بہت سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ 7 کالی مرچیں فجر عصر پانی کے ساتھ 5 ہفتوں تک استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ 1 چمچ شہد میں 10 قطرے کلونجی کا تیل اچھی طرح مکس کریں اور مریض کو پلائیں۔ عصر کے وقت 3 عدد کیلے اکٹھے کھائیں۔ انشاءاللہ 5 ہفتوں کے مسلسل استعمال سے
फालिज और लकवा का मरीज़ अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। सुबह शाम 3 चम्मच खालिश शहद पानी में घोल कर पिएँ। कुछ माह के बाद छोड़ दें। निहायत आज़मूदा है, बाल मज़ीद ना झड़ेंगे। मज़ीद रोज़ाना दिन में 3 मरतबा नाक में कोई सा भी तेल या वेज़लिन लगाएं तो मज़ीद बेहतरी होगी। नाज़रीन, अगर किसी को चावल खाने के बाद थोड़ा सा नारियल, ताज़ा या खुश्क नारियल भिगोकर खा ले, चावल फ़ौरन हज़म हो जाएंगे। कच्चे कोरे बर्तन में दही इतना लें जितना आप खा सकें। उसमें देसी शक्कर, डार्क ब्राउन शुगर मिला लें। रात को बर्तन ढांक कर खुले सहन में रख दें। अगर कच्चा बर्तन और खुला सहन मुयस्सर ना हो तो जो बर्तन मुयस्सर हो आप उसको कमरे या फ्रिज में रख दें। सुबह ये रात की पक्की रोटी से खाएं और इंशाअल्लाह ख़तरनाक बीमारियों से निजात पाएंगे। नाज़रीन, अंडे के छिलके साए में सुखाकर बारीक पीस लें। फिर हम वज़न संघाड़े का आटा और थोड़ी सी मिश्री लेकर मिक्स करके आधा चम्मच सुबह शाम खाएं। वो लोग जिनको कैल्शियम की कमी की वजह सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं वो ख़त्म होंगे, हड्डियों को ताकत मिलेगी और कद इंशाअल्लाह लंबा होगा। नाज़रीन, ख़ारिश और खिजली की बीमारी के इलाज के लिए चंद तरीके। जल्द को साफ़ रखें और साबुन से अच्छी तरह धोएं। जल्दी इन्फेक्शन से बचने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। जल्द को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। ये खुश्क जल्द की वजह से होने वाली खिजली को कम करता है। डॉक्टर के मशवरे से एंटीहिस्टामाइन दवाएं ले सकते हैं जो ख़ारिश को कम करने में मदद करती हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं और ऐसे खानों से परहेज़ करें जो एलर्जी का बायस बन सकते हैं, जैसे दूध, अंडे या मछली। नाज़रीन, मुनासिब पानी पीने से जल्द हाइड्रेट रहती है। अगर खिचली बरकरार रहे या बढ़ जाए तो जल्दी माहिर से मशवरा करें, क्योंकि ये किसी बड़ी बीमारी की अलामत हो सकती है। याद रखें, हर सूरत में डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। इन चीज़ों से हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है। ठंडी रोटी खाने से, आयतल कुर्सी रोज़ाना पढ़ लेने से, मसूर की दाल खाने से, जानवर की गर्दन के करीब वाला गोश्त खाने से वज़न में कमी लानी है तो समुद्री नमक खाएं। नाज़रीन, सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर बैठने से जल्द सख्त हो जाती है। जो लोग मछली का इस्तेमाल करते हैं उनको दिल की बीमारी नहीं होती। मुर्गी का अंडा दूध में डालकर खाओ, आपकी मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी। रात के वक्त प्याज का इस्तेमाल ना करें, बवासीर का मसला हो जाएगा। नाज़रीन, निहार में रोज़ाना 2 अंडों की सफ़ेदी खाने से शुगर कभी नहीं होती और जिसको शुगर का मसला हो वो भी कम होती जाएगी। चेहरे की छाइयाँ और झुर्रियाँ दूर करने के लिए गर्म दूध में शहद मिलाकर रोज़ाना पी जाएं। हफ्ते में वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगेगा। नाज़रीन, कच्चे प्याज की खुशबू सूंघ लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अंजीर को पानी में भिगोकर निहार मुँह खाने से गाल गुलाबी हो जाते हैं। चावलों का पानी उबाल कर पियो, कब्ज़ दूर होगी। बदन पर सरसों का तेल लगाने से मच्छर का डंग असर नहीं करेगा। खजूर सांस के अमराज से निजात दिलाती है। दिन में 3 खजूरें इस्तेमाल करें। नाज़रीन, दांतों का खट्टापन दूर करना है तो बादाम खाएं। तिलों का तेल बालों में इस्तेमाल करने से बाल गिरना रुक जाते हैं। जिन अफराद को बलगम की प्रॉब्लम रहती हो उनके लिए बैंगन का सालन ज़बरदस्त है। हर जेवर के डब्बे में एक चाक रख दो, जेवर का रंग कभी काला नहीं होगा। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। कच्ची हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। नाज़रीन, हरी चटनी का रंग फ्रेश रखना है तो बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच लीमू और तेल शामिल कर दें। शक्करकंदी खाओ, ये मैदा साफ रखती है और ये अल्सर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। दोपहर को खीरे की काशों पर हल्का सा नमक बमा स्याह मिर्च पिसी हुई छिड़क कर पेट भरकर खाएं और अगर भूख बाकी हो तो थोड़ी सी रोटी खा लें। इससे आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम हो जाता है। शर्त यह है कि ये अमल चंद माह मुसलसल करें। नाज़रीन, जोड़ों की सूजन में प्याज बेहद मुफीद है। प्याज का रस और सरसों का तेल हम वज़न मिलाकर दर्द वाली जगह पर मालिश करने से फ़ायदा होता है। इसबगोल गर्मी के बुखार और खून के जोश को तस्कीन देकर
तबीयत को बेहतर करता है। ठंडे दूध में 1 चम्मच इसबगोल डालकर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, खुश्क पुदीना आधा चम्मच 2 कप पानी में डालकर कहवा बना लें। जब 1 कप पानी रह जाए तो उसमें हस्बे ज़ायका मीठा मिलाकर पी लें। कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए लाजवाब नुस्खा है। फालसे का इस्तेमाल गर्मी की वजह से होने वाले अमराज, प्यास की ज़्यादती, दिल की घबराहट और पसीने के ज़्यादा आने में बहुत ही मुफीद है। इसका मिजाज सर्द और तर है। जिन मरीज़ों को जिगर की गर्मी और आंतों की खुश्की की वजह से दायमी कब्ज़ रहती हो, वो सुबह के वक्त फालसे चूस कर कठायों समेत खाएं। इससे खासा अफाका होता है। इसे खाने से जिल्द की चमक और ताजगी में इजाफा होता है। मौसम की शिद्दत की वजह से बेचैनी और इस्तराबी कैफियत, मैदा और सीना की जलन, दिल की हरकत में तेज़ी, जिगर की कमज़ोरी और हिरारत की ज़्यादती में इसके फ़वाइद मुसल्लम हैं। नाज़रीन, सर्दी के मौसम में रोज़ाना 2-3 घंटे धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। सूरज की शुआएँ हमारे बदन में ना सिर्फ हिरारत पैदा करती हैं बल्कि ताकत भी देती हैं। इसको अहले मगरिब सन बाथ कहते हैं, जो उनके यहाँ बड़ा मकबूल है। ताज़ा संतरा कहीं रख दें, पड़ा सूख जाए तो उसे पीसकर शहद की मदद से उसकी चन्ने के बराबर गोलियां बना लें। ये गोलियां हैज़ा, कै और मतली को ख़त्म कर देती हैं। रोज़ाना 5 गोलियां खाएं। नाज़रीन, सर्दी लगने, मैल जमने, फंसियाँ निकलने, चोट लगने से कान में दर्द होने लगे तो अदरक के रस को कपड़े से छान कर नीम गर्म करके 3-4 बूंदें डालें। इससे दर्द ज़रूर ठीक हो जाएगा। अगर दर्द बाकी रहे तो थोड़ी देर बाद दोबारा डालें। नाज़रीन, घुटनों का दर्द दूर करने के लिए खाने के साथ खीरा बतौर सलाद ज़रूर खाएं। इंशाअल्लाह इससे मज़कूरा मर्ज़ से जल्द ही निजात मिल जाती है। कच्चे पपीते से गुर्दे की पथरी खुद ब खुद पेशाब के रास्ते निकल जाती है। आप कच्चे पपीते को नमक लगाकर या फिर चीनी लगाकर हस्बे तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। पथरी 100% निकल जाएगी। नाज़रीन, अगर नाक की हड्डी बढ़ रही हो तो उसके लिए नीम के थोड़े से ताज़ा पत्ते लेकर उन्हें पानी में जोश दें। फिर उस पानी को छान कर उसमें ज़रा सा नमक मिला लें। इस नीम गर्म पानी को नाक के नथनों में इस तरह डालें जैसा कि वज़ू करते हुए डालते हैं। 10-12 दिन तक इलाज जारी रखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। 2-3 गाजरें काट कर थोड़े से पानी में इतना उबालिए कि पानी गाजरों में जज़ब हो जाए। अब उन पर थोड़ी सी चीनी डाल लें। रोज़ाना नाश्ते में उबली हुई 3 गाजरें खाकर 1 गिलास दूध पी लिया करें। ज़ायका के लिए उन पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या छोटी इलायची पीसकर छिड़क सकते हैं। 3-4 हफ्तों में सेहत लाजवाब हो जाएगी। अगर चाहें तो गाजर का मुरब्बा भी बना सकते हैं। नाज़रीन, उस घर में खुशियाँ और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाए। बुखार के मरीज़ के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। नाज़रीन, कच्चा अमरूद खाने से जिस्म में ताकत आती है। रोज़ाना 15 मिनट पैदल वॉक करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। दांतों की सफाई के लिए लीमू को निचोड़ने के बाद उसके छिलके के अंदरूनी तरफ नमक लगाकर दांतों पर अच्छी तरह मल लें। इससे दांत इंतहाई चमकदार और साफ़ हो जाते हैं। हाथों और कोहनी पर पड़ जाने वाले स्याह निशान दूर करने के लिए लीमू के इस्तेमाल शुदा छिलके लेकर मुतासरा जगह पर रगड़ें और फिर उस जगह को धोकर कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लें। दिन में 1 मरतबा इस टोटके पर अमल करें। चंद रोज़ में स्याह धब्बे दूर हो जाएंगे। नाज़रीन, वो लोग जिनकी नज़र दिन के वक्त ठीक हो लेकिन रात को उन्हें कम दिखाई देता हो, ऐसे अफराद को चाहिए कि गाजरें कसरत से इस्तेमाल करें, क्योंकि गाजर में हयातीन अलिफ बकसरत पाए जाते हैं। ये रात के अंधेपन का कुदरती इलाज है। नाज़रीन, सब्ज़ मिर्चें बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। इनको कुछ अरसा महफूज करना हो तो उनकी डंडियाँ उतार दें। इससे मिर्चें काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहेंगी। नाज़रीन, अनार के दाने निकालकर उन पर नमक और काली मिर्च का सफूफ छिड़क कर उनका रस चूसना पेट के दर्द की शिकायत और भूख की कमी में बहुत मुफीद होता है। अदरक का रस आधा चम्मच, देसी घी आधा चम्मच मिक्स करके रोज़ाना 1 चम्मच सुबह शाम पीने से पुराना कमर दर्द ठीक हो जाता है। और ये टोटका इस्तेमाल करने वाला
इंशाअल्लाह आइंदा के लिए कमर दर्द से महफूज रहेगा। नाज़रीन, कुंद ज़हनी से निजात के लिए पहले दिन सुबह निहार मुँह एक बादाम की गरी, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, हत्ता कि 40 दिन तक एक एक गरी बढ़ाते जाएं। 40वें दिन 40 गरियां खाएं। 41वें दिन से रोज़ाना एक एक गरी कम करते जाएं, हत्ता कि एक गरी तक वापस आ जाएं। हाफजा लाजवाब हो जाएगा। बादाम को रात को मट्टी के बर्तन में भिगोएं, सुबह बादाम को छिलके उतार कर खाएं। नाज़रीन, छुआरा बलगमी अमराज के लिए निहायत फ़ायदा मंद है। नज़ला ज़ुकाम में 2-3 छुआरे छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़े से पानी में भिगो दें। जब फूल जाए तो बमा पानी देगची में डाल दें और उसमें 1 पाव के करीब दूध डालकर हल्की आंच पर रख दें। जब खूब अर्क निकल आए तो उतार लें। नीम गर्म होने पर चुस्की चुस्की पी लें। नाज़रीन, बकरे के पाँव पर मोच या वरम आ जाए या सूजन हो जाए तो उसके पाँव पर कोई मोटा कपड़ा बांध दें। मटके का रात वाला बासी पानी सुबह के वक्त मुतासरा जगह पर पट्टी खोल कर डालें। 3-4 दिन ये अमल करने से उसके पाँवों की सूजन, मोच और वरम दूर हो जाएगा। नाज़रीन, सुबह निहार मुँह और रात को सोते वक्त 1 चुटकी कलवंजी पानी के साथ लें। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इस्तेमाल करें, मैदे की जलन ख़त्म हो जाएगी। नज़ला ज़ुकाम, सीने की तकलीफ़ और बलगम बनने की बीमारी में मेथी दाना का इस्तेमाल अज़हद मुफीद है। सुबह शाम 2 चाय के चम्मच 1 कप पानी में जोश देकर शहद से मीठा करके पी लें। मुसलसल इस्तेमाल से दायमी नज़ला भी ख़त्म हो जाता है। छोटे बच्चों को इस्तेमाल कराने से सारा बलगम निकल जाता है। नाज़रीन, जिसको नींद ना आने की शिकायत हो तो वो शाम के वक्त रोज़ाना फ्रूट चाट खाए। इंशाअल्लाह नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाएगी। नाज़रीन, पेशाब की जलन को दूर करने के लिए सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले अजवाइन खरासानी का सफ़ूफ 1 चमचा चाय वाला हमरा पानी के साथ रोज़ाना दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें। पेशाब की जलन के लिए बहुत बेहतरीन है। जब तक तकलीफ़ दूर नहीं होती तब तक इस्तेमाल करें। ठंडी हवा में घूमने के बायस अगर सर्दी लग जाए और सर में दर्द हो तो नाक, कान, नाफ और तलवों पर नीम गर्म सरसों का तेल लगाएं। नाज़रीन, 5 अदद बादाम की गरियां भिगोकर छील कर उनमें 7 अदद छोटी इलायचियाँ और हस्बे ज़ायका मिश्री मिलाकर पीस कर 1 गिलास पानी में घोलकर सुबह और शाम को पिया करें। इससे पेशाब की जलन में अफाका हासिल होता है। अगर किसी को फूड पॉइज़न हो जाए तो 1 चम्मच प्याज का रस पी लें। इससे इंशाअल्लाह मैदा ठीक हो जाएगा। खूनी बवासीर के लिए साबित हल्दी लेकर उसे मोटा मोटा पीस लें। सुबह निहार मुँह 1 चुटकी ताज़ा पानी के साथ खाएं। आधे घंटे के बाद नाश्ता करें। 7 दिन में तकलीफ़ रफ़ा हो जाएगी। नाज़रीन, मूंगफली के साथ गुड़ खाना कमज़ोरी दूर करने के लिए बहुत लाजवाब है। जिस्मानी दर्दों या ताकत के लिए या ऐसे अफराद जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो उनके लिए बेहतरीन टानक है। अगर वज़न ज़्यादा करना हो तो रोज़ाना कम से कम 6 केले खाएं और ऊपर से नीम गर्म दूध पिएं। मिल्क शेक हरगिज़ नहीं पीना। और अगर वज़न कम करना हो तो उसके लिए 1 चम्मच शहद 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर निहार मुँह इस्तेमाल करें। अगर आम खाने के बाद थोड़े से जामुन खा लिए जाएं तो आम की गर्मी ज़ायल हो जाती है और आम फौरी हज़म हो जाते हैं। नाज़रीन, हाफ़ज़े को बेहतरीन बनाने के लिए निहार मुँह 1 चुटकी कलवंजी कम से कम 11 दाने रोज़ाना खाएं। हाफ़ज़ा लाजवाब हो जाएगा।